class we are discussing tree traversal. So what the tree traversal is? Traversal, traversal means how to process the data. Here we are talking about tree traversal. It means that how the data in the tree will be processed. Means in what order the data can be processed in tree. There are three types of tree traversal. And told you in previous class that there are three types of tree traversal: in order, pre-order, and post-order. So we discussed in order traversal in previous class. Now we are going to discuss the pre-order traversal. So how the tree will be processed in order. Pre-order. Now here, this is a tree. The root of the tree is A, and this is left subtree, and this one is the right subtree. Again, in this tree we have, in this subtree again we have another subtree, right? Here we have just one node, but here on the right we have the subtree. Similarly, on the left, in this subtree, on right we do not have any node, so we do not have any subtree, but on the left we have this subtree. Again, in this subtree, we have the subtree on right. So, it will be processed in pre-order. So, how pre-order traversal takes place? The pre-order traversal processes the root first, then the left node, then the right node. Here, suppose we have this small tree. So for the sake of understanding, I'm just using this small tree. It has the root and the left child and right child. So here we do not have the further subtrees. Here we have this tree which has three nodes, just three nodes, right? The root node, left child, and right child. So how this will be processed? The pre-order traversal tells us that first we process the root. So what is the root of this tree? A is the root. So first A will be processed. Then the left child. So what is the left child? Left child is B. Then the right child. The right child is C. So the next node that will be processed is C. So the order in which this tree will be processed is A, B, C. Now we look into this bigger tree, or this more deep tree like this. Now here we have to see that how the nodes will be processed. So I'm going to write it in front of you that how we'll process this. I'm just deleting these all, and then I'm going to write it in front of you, right? So first the root will be processed. Okay, so what is on the root? In the root we have A. In the root we have A. So root will be processed first, right? Then we'll, according to this says that first we will process the root or the node itself, means the node at which currently we are. So currently means we start the tree with
the root. ठीक है, so at that time the node will be the root. So here the node is the root. Mm, so the root is A. So first A will be processed, then the left child, and then right child. So we move to the left child in the left subtree. Left means left subtree. So again the same rule will be applied. The root or the node where we are means currently we are here. So the first that node will be processed. Okay, so we process it, right? Then left. Okay, we'll move to the left. So again on the left we have subtrees. The first in this subtree, the node itself is D. So this D will be processed, and then left. So what is on the left? G. So further, there are no nodes in the left. So this G will be processed, and then we'll move to the right, because when the node is processed means node, which node? This D, it has been processed. Its left has been processed because there was only one node or the child node on the left, so it has been processed. Then we'll move to the right of this node, right? So on the right, what we have this subtree. Again in this subtree, the same rule will apply. So what that rule is? The rule is the node itself, and the right the node itself. So what node? We are here currently. Here the node is H, right? Then the left of that node. So what is the left? It is K. And what is the right? It is L. So now this right has been processed. Means this tree has now been processed. So I'm just going to mark it like this, that we have processed this completely. We have processed this node completely. Now this subtree has been processed completely, right? Because D, right, is the root of this tree is D. So the D, and the left node, or on the left we have just G, which has been processed. Then the right of this tree, on the right again we have this subtree, which first we will process the node of the right, which is H, then the left, then right. So now this subtree has been completely processed. अब ये जो subtree है किसकी subtree है? It is a subtree of this node B. ठीक है, B की subtree है. तो first हमने B को process किया था. पहले हम node को process करते हैं, फिर उसका left और right child process करते हैं. तो B को हमने पहले process किया हुआ है, क्योंकि पहले हम नोड को प्रोसेस करते हैं फिर उसके लेफ्ट और राइट को करते हैं. तो ये बी हमने प्रोसेस किया हुआ है और फिर हम आए थे इसके लेफ्ट पे. अब हम जाएंगे इसके राइट पे. बट देयर इज नो ट्री और नो नोड ऑन द राइट. There is no node, right? You can see here the right child is empty, right child is null. So it means that this whole subtree has been processed. ठीक है, अब देखें कि ये लेफ्ट साइड पूरा जो है वो प्रोसेस हो चुका है, राइट? अब ये लेफ्ट सबट्री किसका था? ए का, जो कि पहले उसको हमने पहले प्रोसेस किया. क्योंकि तरीका ये होता है कि पहले हमें नोड को इटसेल्फ प्रोसेस करना होता है, देन वी मूव टू द लेफ्ट.
तो ए भी प्रोसेस हो चुका है। नाउ वी, अब ये क्या है कि भाई इस ट्री का जो कंप्लीट जो पूरी ट्री है हमारे पास, जो कि यहाँ से उसका रूट है ए, उसका जो लेफ्ट साइड कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है। और ए खुद को भी हमने पहले ही प्रोसेस किया हुआ है, क्योंकि जो मेथड है कि वी हैव टू प्रोसेस द नोड फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यानी कि नोड हम किसको कंसीडर करेंगे, सबसे पहले रूट को, राइट। तो सबसे पहले उस नोड को प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, ए प्रोसेस होगा। देन क्या करना है, लेफ्ट को प्रोसेस करना है। अब लेफ्ट पे अगर ये सिंपली बी होता तो वो सिंपली हम बी लिख लेते, पर क्या है कि ये वी हैव अगेन अ सब ट्री। ये जो रेड जो रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली हमारे पास सब ट्री है। तो इस सब ट्री में आए वही रूल अप्लाई होगा। रूल क्या है कि पहले हमें वो नोड को प्रोसेस करना है, यानी कि जिस सब ट्री को हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके पहले रूट को प्रोसेस करेंगे। तो वो रूट क्या है, बी, तो बी पहले प्रोसेस हुआ। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू मूव टू द लेफ्ट। अगेन लेफ्ट पे हमारे पास सब ट्री है, तो लेफ्ट पे हमारे पास सब ट्री है, तो वो उस सब ट्री का जो रूट है या नोड है वो क्या है, उस दैट इज टी। तो पहले हम टी को प्रोसेस करेंगे। देन वी हैव टू मूव टू द लेफ्ट। लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, जी, और फर्दर कोई सब ट्री नहीं है, तो जी को प्रोसेस करेंगे। यानी कि जी किसका, लेफ्ट है, इस डी का, राइट। डी को हम प्रोसेस कर चुके हैं, ठीक है, वो नोड प्रोसेस हो चुका है, और फिर उसके जो है वो लेफ्ट को हम प्रोसेस करेंगे। तो लेफ्ट पे क्या है, जस्ट जी, उसको प्रोसेस करेंगे। फिर हम जाएंगे इस डी के राइट पे। करंटली हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो इसके राइट पे जाएंगे। अब इस राइट पे अगेन हमारे पास सब ट्री है, तो उस सब ट्री का रूट क्या है, एच, तो एच विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट। देन लेफ्ट, लेफ्ट पे खाली ये चाइल्ड नोड है के, that will be processed next, and then L will be processed next. Now we have completely processed or traversed this tree on the left. यानी कि इस ट्री का लेफ्ट पूरा कंप्लीटली प्रोसेस हो चुका है, यानी कि ये नोड भी खुद भी प्रोसेस हो चुका है, रूट भी प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ए प्रोसेस हो चुका है और उसका लेफ्ट भी प्रोसेस हो चुका है। नाउ विल मूव टू द राइट। अगेन राइट पे भी वही रूल अप्लाई होगा, यानी कि राइट पे भी जो पहले रूट होगा उसको प्रोसेस करेंगे, देन लेफ्ट, देन राइट, राइट। तो यहाँ पे इस राइट में जो सब ट्री है उसका रूट क्या है, सी, तो सी विल बी प्रोसेस्ड नेक्स्ट। देन उसका लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या है, वी हैव ई। देन on right we have again सब ट्री। उस सब ट्री में भी वही रूल अप्लाई होगा कि भाई वो जो उसका रूट है, देन लेफ्ट, देन राइट। अब नोड कहें या जो है हम रूट कहें तो उसकी सेम बात है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट नोड, ठीक है। तो राइट पे हम आए, तो राइट पे जो करंट नोड है वो क्या है, एफ है, उसको पहले प्रोसेस करेंगे। उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट पे आई है। अब आई जो है वो चाइल्ड नोड है, उसका कोई फर्दर लेफ्ट नहीं है, तो उसको हम ये लेफ्ट भी प्रोसेस हो गया कंप्लीटली। नाउ राइट ऑफ दिस एफ, राइट, so it is J. So this is the order in which the nodes will be processed in pre-order traversal. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री मीन्स प्री का मतलब होता है पहले, राइट, पहले। तो पहले नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। इन का मतलब है इन बिटवीन, पहले हम लेफ्ट, देन नोड, फिर राइट, जो कि हमने इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस की थी। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल
जो कि हमारी थी कि भाई पहले लेफ्ट फिर नोड यानी कि रूट फिर राइट। तो हमने इस तरह से इसको प्रोसेस किया था। जैसा कि ये हमारे पास मौजूद है, तो उसमें क्या था कि पहले ये सब सपोज करें कि ये हमारे पास छोटी सी एक ट्री है, तो उसका रूट हमारा ए है, फिर लेफ्ट चाइल्ड बी है, फिर सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेफ्ट को प्रोसेस करना है। तो लेफ्ट में क्या है, बी है, देन उस नोड को खुद को, ठीक है, जो कि ए है, देन सी, राइट। अब इसी का अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होगा कि फर्स्ट हमें जो है वो रूट को प्रोसेस करना होगा, यानी कि फर्स्ट ए विल बी प्रोसेस्ड, देन लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या है, बी है, एंड देन राइट। यानी कि इसका अगर हम प्री ऑर्डर करें, प्री ऑर्डर इसका करें इसी का, तो क्या होगा कि पहले बी, सॉरी हाँ, प्री ऑर्डर, सॉरी प्री ऑर्डर में क्या होगा, प्री में क्या कहता है कि पहले हमें नोड को करना है, ठीक है। तो नोड यानी कि जहाँ पे करंटली है, करंटली का मतलब है कि हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट हम ले रहे हैं रूट से, हमेशा रूट से ही स्टार्ट लिया जाता है ट्री का। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, रूट यानी कि ए, देन लेफ्ट, देन राइट, सॉरी लेफ्ट पे क्या है बी, और फिर राइट पे क्या है सी है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल will process this tree in this order A, B and C, and in order traversals को किस तरह से प्रोसेस करेगी, B, A, C। अब देखें वही सेम ट्रीज हम यूज कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें इस तरह से ट्री मिली थी। अब कंपेयर करें इसको, वही ट्री है जो कि हमने यूज की है इस पर्पस के लिए। तो ये हमारी मिला था हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में, जो कि मैंने आपके सामने उसकी की, ठीक है। तो वही सेम ट्री है, और उसी का हम अगर प्री ऑर्डर जो है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, तो वो हमें क्या मिल रहा है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें क्या मिला, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले क्या प्रोसेस हुआ, जी, कैसे देखिए, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या करता है, पहले लेफ्ट करता है, ठीक है, फिर क्या करता है, नोड करता है, फिर क्या करता है, राइट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट यानी कि शुरू करते हैं हम कहाँ से, रूट से, ठीक है, फिर उसके लेफ्ट पे हम गए, ठीक है। तो ये कहता है कि पहले लेफ्ट प्रोसेस करो, ठीक है। अब इस लेफ्ट में गए तो ये चाइल्ड नोड नहीं है, यहाँ पे अगेन सब ट्री है, तो उस सब ट्री के भी लेफ्ट पे जाएंगे। तो उस सब ट्री में अगेन सब ट्री है, तो उसके भी लेफ्ट पे जाएंगे। तो वो लेफ्ट पे क्या है, जी है, यानी कि ये हम क्या करें, इन ऑर्डर ट्रेवर्स, इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर। तो यहाँ पे आए जी तक, तो अब जी का फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है, तो प्रोसेस क्या होगा, जी पहले क्या प्रोसेस होगा, जी प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फिर उसके रूट को या वो जो खुद नोड है उसको प्रोसेस करो। तो वो क्या है, उसका जो है वो रूट है क्या है, जी का या पेरेंट क्या है, डी, ठीक है। तो वो डी प्रोसेस होगा। फिर राइट में आएंगे, अब राइट में अगेन क्या करेंगे, लेफ्ट, फिर पेरेंट, फिर राइट। तो इसके लेफ्ट पे क्या है, के, यानी कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, के, फिर उसका पेरेंट यानी कि एच, उसके बाद क्या है, राइट, राइट पे क्या है, एल है, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये जो है वो राइट भी प्रोसेस हो गया, यानी कि ये यहाँ तक का, ये जो सब ट्री है यहाँ तक का, ठीक है, ये जो ग्रीन में है वो सारा प्रोसेस हो चुका, ठीक है। अब ये लेफ्ट किसका है, इसका पेरेंट क्या है, ठीक है।
इस सब ट्री का पेरेंट क्या है, बी है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद अब इसके पेरेंट को प्रोसेस करेंगे, तो उसका पेरेंट क्या है, बी है, तो उसके बाद बी प्रोसेस होगा। फिर इसका राइट चाइल्ड, अब राइट चाइल्ड है ही नहीं तो डेफिनेटली कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी ट्री, सब ट्री जो है वो कंप्लीटली प्रोसेस हो चुकी। उसके बाद अब ये यहाँ तक प्रोसेस हो चुकी, तो ये किसकी सब ट्री थी, ए की। तो ये सब ट्री प्रोसेस हो चुकी और उसका पेरेंट क्या है, उस ट्री का रूट क्या है, उस ट्री का रूट है ए। देन ए विल बी प्रोसेस्ड। देन हम आएंगे राइट पे और वही सेम रूल विल बी अप्लाइड। ए लेफ्ट पेरेंट या नोड या हम इसको कहें रूट, देन राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट, अब लेफ्ट में क्या है, ई, फिर उसका पेरेंट, पेरेंट क्या है, सी। उसके बाद राइट, अब राइट में भी अगेन सेम रूल विल बी अप्लाइड, लेफ्ट चाइल्ड देन पेरेंट देन राइट। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है, आई, उसका पेरेंट क्या है, एफ, एंड देन right child, that is J. So this is how the in-order traversal works that we have already discussed in previous class. Now we have another third type of traversal. अब यहाँ पे देखें कि ऑर्डर डिफरेंट है। अब यहाँ पे कैसे प्रोसेस हो रहा है, A B D G H K L C E F I J। अब यहाँ पे कुछ और ऑर्डर है, G D K and so on, right? तो ट्री वही है लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग डिफरेंट है, इट वेरीज, ठीक है। क्योंकि ट्रेवर्सल तो मस्ट होती है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ट्रेवर्सल से हमें पता चलता है कि भाई जारी बात है, कोई भी ट्री हम बनाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, उसको प्रोसेस करने की, सिर्फ बना के रख देना तो कोई मकसद नहीं है, उस ट्री को डेफिनेटली हमें प्रोसेस करना है, जस्ट बना के रखना तो नहीं है। अब हम देखेंगे आगे, हम डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे ट्री की, तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होंगी जहाँ पे हमें ट्रेवर्सल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारे दो ट्रेवर्सल हम डिस्कस कर चुके, अब हम थर्ड ट्रेवर्सल पे आते हैं जो कि है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, ठीक है, मैं इसको रब करती हूँ और अगेन आपके सामने इसको बनाएंगे, ठीक है। अब प्री ऑर्डर क्या करता है कि पहले लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड देन पेरेंट, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड देन पेरेंट। तो अब ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगेन आई एम टेकिंग द स्मॉलर ट्री के first we process the left child, right? तो left में क्या है, B है, then right child that is C, and then parent, parent क्या है, A है, तो B C A। So this is the order in which the tree will be processed. अब यहाँ पे again हम इस deep tree को देखते हैं as compared to this। अब इसके कंपैरिजन में कुछ ये बड़ी ट्री है या डीप ट्री है। अब यहाँ पे तरीका क्या है, अब यही रूल अप्लाई होगा कि भाई फर्स्ट द लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड देन पेरेंट। तो अब यहाँ पे हम आए, शुरू हमेशा कहाँ से करेंगे, रूट से। अब ये जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो हमें क्या बताती है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रोसेस द लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि किसका लेफ्ट चाइल्ड। अब शुरू हम कहाँ से करें, रूट से करें, तो डेफिनेटली लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दिस रूट, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारे पास सब ट्रीज हैं, मुख्तलिफ सब ट्रीज, बहुत सारी सब ट्रीज हमारे पास बन रही है। तो हम आए यहाँ पे, तो ये जो सब ट्री हमें मिल रही है उसको हम देखें कि कहाँ पे है ये सब ट्री।
ये सब ट्री एक हमारी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये सब ट्री है, इसको हमें पहले प्रोसेस करना है। अब इस सब ट्री में हम आए तो पहले इस सब ट्री का रूट क्या है, तो रूट को प्रोसेस नहीं करना, उसके लेफ्ट को प्रोसेस करना है। अब लेफ्ट में अगेन हमारे पास सब ट्री है, वो सब ट्री क्या है, वो सब ट्री हमारी ये ट्री है जिसको हम अगेन प्रोसेस करने जा रहे हैं। लेफ्ट सब ट्री जो हमारी प्रोसेस होगी या बनेगी, दैट विल बी लाइक दिस। ये हमारी सब ट्री है, इसको हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम प्रोसेस करेंगे और ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री अगेन हमारी आ गई। अब यहाँ पे हम आए तो इसका सबसे पहले इसको देखेंगे भी पेरेंट इसका क्या है, या जो है वो इस सब ट्री का रूट क्या है, डी। तो उसको नहीं प्रोसेस करना, हमें प्रोसेस किसको करना है, पहले लेफ्ट को। ओके, तो लेफ्ट में क्या है, जी है। अब उसमें उसकी फर्दर कोई सब ट्री नहीं है, ठीक है, उसकी फर्दर सब ट्री नहीं है, तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू प्रोसेस जी, ठीक है। अब जी प्रोसेस करनी है, उसके बाद क्या है कि लेफ्ट देन राइट। अब राइट पे अगेन वी हैव सब ट्री। अब वो सब ट्री क्या है, सब ट्री राइट पे सब ट्री क्या है, राइट पे हमारे पास सब ट्री जो है वो इस तरह से है, लाइक दिस। यहाँ पे हम देखें कि सब ट्री हमारी क्या बन रही है, इट इज लाइक दिस, राइट। तो ये हमारी सब ट्री है। अब यहाँ पे अगेन सेम रूल विल बी अप्लाइड कि फर्स्ट लेफ्ट। अब इस सब ट्री का जो रूट है वो एच है और लेफ्ट चाइल्ड क्या है, के है। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रोसेस दिस के, देन राइट, इसको राइट नोड को प्रोसेस करेंगे, देन वी हैव टू प्रोसेस इट्स रूट। तो उसकी रूट या उसका पेरेंट क्या है, दैट इज एच, राइट। अब हमने क्या किया कि भाई ये इसको हमने इसको हमने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब ये क्या था, ये सब ट्री क्या था, दिस वाज द राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड बी। अब ये राइट सब ट्री था, तो राइट को हमने जब प्रोसेस कर लिया तो डेफिनेटली वी हैव प्रोसेस द लेफ्ट बिफोर दिस, क्योंकि इसको प्रोसेस करने का तरीका क्या है कि भाई पहले हमें लेफ्ट करना है, देन राइट करना है, देन रूट करना है। तो रूट या जो है वो नोड इटसेल्फ, ठीक है, लेफ्ट राइट देन रोड, सॉरी नोड, ठीक है। अब ये जो राइट सब ट्री है, किसकी सब ट्री है, इस नोड की, किसकी, बी की। तो इसका लेफ्ट भी प्रोसेस हो चुका, राइट हैज आल्सो बीन प्रोसेस्ड, नाउ वी हैव टू प्रोसेस दिस नोड इटसेल्फ, और वो नोड क्या है, दैट इज बी। देन अब ये जब प्रोसेस हो चुका, अब ये डी तक प्रोसेस हो चुका, यानी कि ये जो सब ट्री हमारी रेड में है, ठीक है, दैट हैज बीन प्रोसेस्ड। अब हमें क्या करना है कि भाई ये लेफ्ट प्रोसेस हो गया, ये लेफ्ट किसका है, ये सब ट्री लेफ्ट किसका है, बी का, ठीक है। अब इसका राइट हमें प्रोसेस करना है, बट देयर इज नो नोड ऑन द राइट, ठीक है। देखिए बी के राइट पे कोई नोड नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोसेस दिस बी, ठीक है। तो उस बी को प्रोसेस करेंगे। नाउ बी जब प्रोसेस हो गया, अब बी
प्रोसेस होने के बाद ये जो ग्रीन में हमें सब ट्री नजर आ रही है, इट हैज बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड। अब ये सब ट्री किसकी सब ट्री है? ए की, ठीक है, ए की सब ट्री है, यानी कि ए का लेफ्ट हैज बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड। नाउ वी विल मूव टू द राइट ऑफ ए, क्योंकि क्या तरीका हमें बताता है कि फर्स्ट वी हैव टू प्रोसेस द लेफ्ट, देन राइट, देन द नोड इटसेल्फ। तो राइट जो है इस ट्री का वो क्या है? दैट इज दिस नोड। अब हम देखें, अगेन वी आर गोइंग टू डू सब ट्री, ठीक है, जो कि सब ट्री हमारी यहाँ पे है राइट की सब ट्री। तो उसको हम करें, ये राइट की सब ट्री है, ठीक है। अब ये राइट की सब ट्री है, तो राइट में अगेन हमारे पास क्या है कि उस सब ट्री का रूट क्या है या नोड या पेरेंट क्या है? दैट इज सी। अब उसको पहले नहीं प्रोसेस करना, पहले लेफ्ट को करना है, देन राइट को, देन हम उसको करेंगे सी को, ठीक है। तो इसके लेफ्ट पे हमारे पास क्या है? वी हैव ई, ठीक है, विल प्रोसेस ई फर्स्ट, ई को प्रोसेस करेंगे, देन राइट ऑफ दिस सी, यानी कि इसलिए जो ब्लू में सब ट्री है हमारे पास, उसके राइट को हम प्रोसेस करेंगे एंड फिर उसको सी को प्रोसेस करेंगे। अब राइट पे हमारे पास क्या है? अगेन वी हैव सब ट्री। वो कौन सी सब ट्री है? सो दिस वन इज द सब ट्री ऑन द राइट, और उसमें भी वही सेम रूल विल बी अप्लाइड। तो उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसको हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और उसमें उस सब ट्री का रूट क्या है? एफ। तो उसको प्रोसेस नहीं करना, पहले लेफ्ट को करना है। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है? आई, यानी कि वो खुद चाइल्ड नोड है। तो जब चाइल्ड नोड आ गया तो बात ही खत्म, वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हो गया। अब इसका राइट, अब राइट क्या है? जे है, देन उसका पेरेंट दैट इज एफ, वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाली सब ट्री कंप्लीटली प्रोसेस हो चुकी। अब राइट प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? हम उस पेरेंट को प्रोसेस करते हैं। तो इसका पेरेंट क्या है? यानी कि वो पेरेंट प्रोसेस नहीं होता, पहले वो लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करता है, फिर राइट चाइल्ड को प्रोसेस करता है, फिर जो है वो पेरेंट प्रोसेस होता है। तो इसका पेरेंट क्या है? इट इज सी। So C will be processed first. Then C जब प्रोसेस हो गया, अब देखें ये भी कंप्लीटली प्रोसेस हो गई ये सब ट्री, क्योंकि इसमें जितने भी नोड्स हैं वो तमाम के तमाम प्रोसेस हो चुके हैं। बी देखें, ठीक है, इसमें क्या है? बी है, हाँ बी प्रोसेस हो चुका है। डी वो भी प्रोसेस हो चुका है। जी वो भी प्रोसेस हो चुका है। एच it is also processed, and then K it has also been processed, and then L it has also been processed. So ये जो ग्रीन ये लेफ्ट वाली सब ट्री है उसके तमाम नोड्स यहाँ पे हमारे प्रोसेस्ड नोड्स में मौजूद हैं। सिमिलरली राइट सब ट्री जो है उसमें क्या है कि भाई सी है, हाँ वो भी प्रोसेस हो चुका है। ई वो भी प्रोसेस हो चुका है। एफ वो भी प्रोसेस हो चुका है। आई एंड जे दे ऑल हैव बीन प्रोसेस्ड। तो इस जो ट्री है उसके तमाम नोड्स, यानी कि लेफ्ट के तमाम नोड्स प्रोसेस हो चुके, राइट के तमाम नोड्स प्रोसेस हो चुके, एंड देन द पेरेंट या रूट को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, रूट को प्रोसेस करेंगे जो कि ए होता है, ठीक। नाउ दिस ट्री हैज कंप्लीटली बीन processed in a post order traversal. पोस्ट का मतलब है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। तो आफ्टर क्या? आफ्टर यानी कि रूट विल बी प्रोसेस्ड आफ्टर द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड. So first we process the
left child, then we process the right child, then we process the root. यानी कि root is processed after its child nodes are processed. So that's why it is called post order traversal. So post order traversal, तीन तरह की ट्रेवर्सल थी जो कि हम डिस्कस करके आ चुके. अब देखें कि ट्री वही है लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग डिफरेंट है. नाउ इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन. वी नीड जो भी ट्रेवर्सल की जरूरत पड़ेगी वो हम अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर एप्लीकेशन. तो जो जिस तरह की एप्लीकेशन होगी, जिस ट्रेवर्सल की जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे. हियर वी नो कि भाई ट्रेवर्सल किस तरह से परफॉर्म होती है. सो दिस वाज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. ट्री हमारे पास वही है जिसको हमने यूज किया है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें ये मिला था. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल और जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल था उसमें हमें ट्री किस तरह से मिला है. यहाँ पे देखें कि तीनों डिफरेंट. ठीक है, अब देखें सब जो है वो उनका ऑर्डर जो है वो तीनों के डिफरेंट हैं. यू कैन सी इट है. ठीक है, अब प्री ऑर्डर में इस तरह से और इन ऑर्डर में इस तरह से है और पोस्ट ऑर्डर में इस तरह से है. ठीक है, so we have to apply these rules for processing the nodes. अब प्रोसेसिंग यानी कि ट्रेवर्सल, क्योंकि ट्रेवर्सल हर डेटा स्ट्रक्चर में मस्ट होता है कि उसका मकसद यही होता है कि हाउ वी प्रोसेस द डेटा. प्रोसेस करने का मतलब यानी कि जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होती तो उसकी जरूरत क्या है उसको बनाने की. तो जब तक हमें तमाम डेटा पे एक्सेस ना हो, यानी कि इसका मतलब है कि हाउ डू वी एक्सेस all the data in the data structure, right? So this is the post order traversal, and we also did in order traversal and pre order traversal as well. तो तीनों तरह की हमने ट्रेवर्सल की. आप देख सकते हैं कि उनके डिफरेंस क्या थे और किस तरह से हमने उनको प्रोसेस किया. तो आई होप this traversal is clear to you. If you have any question, you may ask here.